अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व मरकज़ तसव्वुफ़ से तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफ़ी खुर्शीद अहमद गयासी आपकी इल्माना खिदमत के लिए एक बार फिर से हाजिर है। हमारी आज की बातचीत का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो आज रहेगा फ़िरका। फ़िरका क्या है, ये कैसे बनता है, फ़िरका क्यों बनता है, क्या वजह है फ़िरका बनने की। आज इन्हीं सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने से पहले एक और बात को समझ लेना ज़रूरी है, जिससे कि आगे की बात आसानी से समझ में आए। हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया कि अंदर का इल्म मगज़ है और बाहर का ज़ाहिरी इल्म छिलका है। इस बात से ये साबित हुआ कि अंदर का इल्म कीमती है और बाहर का इल्म अपने आप में कोई फायदेमंद नहीं है। बाहर का इल्म या छिलका अंदर के इल्म या मगज़ अंदर के इल्म के लिए बाहर का छिलका, बाहर का इल्म अंदर के मगज़ के लिए बाहर का छिलका ज़रूरी होता है, उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। अब हाल कुछ ऐसा हो गया है कि आज के आलिमों ने बाहर का इल्म छिलके को ही पकड़ लिया है और उसी के ऊपर लंबी लंबी तकरीरें, लंबा लंबा बयान, लंबी चौड़ी बातें, बहस। ये कोई समझदारी नहीं है, ये खुली बेवकूफी है। एक ज़ाहिरी आलिम ने बाहर की ज़ाहिरी किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी और उसे इल्म समझ लिया, इल्म समझने की भूल कर बैठा और उसके बाद अपने आप को समझदार समझने लगा और दूसरों को हकीर समझने लगा और अपने ज़ाहिरी इल्म को लोगों को जाहिर करके लोगों को अपने साथ जोड़ने लगा, जमा करने लगा और बहुत ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ने लगे। अब हुकूमत जो होती है, किसी भी मुल्क की हुकूमत, उसे चाहिए होता है वोट। अब वोट के लिए वो ज़ाहिरी आलिमों को पैसे देने लगे, ऐशो आराइश की चीजें देने लगे, तमाम इंतजामात देने लगे और उन पैसे की मदद से वो ज़ाहिरी आलिम, उन पैसों की मदद से वो ज़ाहिरी आलिम एक फिरके का बानी और सरपरस्त बन गया। पैसा बहुत आने लगा, पैसे के लालच में बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए और पैसे के लालच में बहुत से लोग उसके वफादार बन गए और उसके फिरके की तालीमात को, जो उसने किताबों से इकट्ठी की थी, वो उसको आगे बढ़ाने लगे। लोग बढ़ते रहे, फिरका तरक्की करता रहा। इस तरीके से एक फिरका बनता है। फिरकों से तसव्वुफ
اور اللہ کے ولیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے یہ وراثت کا ہو یا ماننے کا دعویٰ کرنے والے کا ہو، چاہے یہ وراثت کا دعویٰ ہو یا ماننے والوں کا دعویٰ ہو۔ فرقوں کا تعلق صرف اور صرف باہری علم، ظاہری علم، چھلکے سے ہوتا ہے، اسی لیے یہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔ فرقہ یعنی ظاہری باہری علم کے ماننے والے تھوڑے یا زیادہ لوگوں کا گروہ کا نام۔ اس کا فقیری سے، صوفیزم سے، تصوف سے، اللہ کے ولیوں سے کوئی تعلق۔ موجودہ دور میں فرقوں کے گروہوں کا تصوف کی تعلیم، اندر کا علم، علم باطن، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اسے جاننے کی تڑپ یا شوق ان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ تو بس اپنی رٹی رٹائی کتابوں کو دہرانے کا کام کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے پڑھا یا سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے پیغمبر کو برا کہا ہو، یا سرکار دو عالم کے پہلے کے پیغمبروں نے اپنے سے پہلے کے پیغمبروں کو غلط یا برا کہا، یا اللہ کے ایک ولی نے اپنے سے پہلے کے کسی ولی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہو یا غلط کہا۔ اور ہاں، اگر ایسا ہوا ہے تو یا تو وہ جھوٹ ہے یا پھر اس ولی کی ولایتی شک میں آ جاتی ہے۔ یہ بات خیال میں رکھنے کی ہے کہ حقیقت کو کھولنا ایک الگ بات ہے اور برائی کرنا ایک الگ بات ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے کسی پیغمبر کی برائی نہیں کی، اللہ کے ایک ولی نے دوسرے ولی کی برائی نہیں کی؟ کیونکہ ان سب کو باری تعالیٰ کی معرفت، باری تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو گئی تھی، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے بہت سارے ہیں، کوئی اس راستے سے آ رہا ہے تو کوئی اس راستے سے آ رہا ہے، راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، منزل ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونے کے بعد میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے میں، مجھ میں، آپ میں، اس میں، اس میں، کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جب منزل سب کی ایک ہے تو برائی کیسی، وواد کیسا؟ اگر مقصد صرف اور صرف باری تعالیٰ کی پہچان کرنا ہی ہو تبھی تو۔ بے شک باری تعالیٰ کی پہچان کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ان سب راستوں کا تعلق اندر کے علم سے ہے، باہر کے علم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر باہر کے علم سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو سکتی تو فخر الدین رازی کو بھی اس کی پہچان ہو جاتی۔ باہر کا علم کیونکہ چھلکے جیسا ہے، کتابی علم ہے، اور الگ الگ فرقے کی الگ الگ کتابیں ہیں، اور یہاں تک کہ کلام اللہ ایک ہے، اس کے ترجمے جو ہیں وہ الگ الگ فرقوں کے ترجمے الگ الگ ہیں۔ چونکہ ظاہری علم کا تعلق
क्योंकि फिरकों का ताल्लुक बाहरी इल्म से है, इसलिए वो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बहसबाजियां करते रहते हैं, खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। और अब तो ये देखा जा रहा है कि कई सिलसिलों में शामिल होकर, दाखिल होकर सिलसिलों की तालीम को ही खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिरका क्या है। फिरका खुद को सही मानना और दूसरे को गलत मानना। अपने अंदर ये बात को बैठा लेना, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सुना, मैंने जो कहा वही सही, सब सही है और बाकी सब गलत है। हर फिरका यही कर रहा है। इसी का नतीजा ये हुआ कि ये आपस में झगड़ते रहते हैं या लड़ते रहते हैं। हमने ये जाना कि फिरका जो बनता है, ज़ाहिरी किताबों को पढ़ लो, बहुत अच्छे से स्टडी कर लो, बहुत सारी किताबें, मन गढ़ंत किताबें बहुत बाजार में मिलती हैं, उनको पढ़िए, अपने साथ कुछ लोगों को जमा कीजिए, और हुकूमत का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है। हुकूमत इन्हें पैसे देती है, पैसे के बल पर ये लोगों को खरीदते हैं, लोगों को अपना वफादार बनाते हैं और अपने फिरके का प्रचार, प्रसार, एडवर्टाइजमेंट खूब करते हैं। हर जगह देख लो आप इनको। एक सूफी को बहुत ख्याल रखना है आज के दौर में कि ये जो रस्मी तकलीदी इल्म, ये मनगढ़ंत हदीसें और इनकी झूठी किताबें, इन सब किताबों से बचे रहना है। भाई देखो, जिनका हाथ कामिल मुर्शिद के हाथ में है, जिसकी डोर कामिल मुर्शिद के हाथ में है, वो मुरीद तो ऐसा है जैसे कि वो नूह की कश्ती में सवार हो गया है। बाकी आजकल फिरकों ने भी बैत करना शुरू कर दिया है और वो अपने आप को बुजुर्गाने दीन का वारिस भी बताने लगे हैं। खैर, आज की हमारी बातचीत यहाँ पूरी होती है। आप लोगों ने बहुत गौर से सुना, समझने की कोशिश की, इसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।